Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Now in this video we will try to discuss a new topic which is nothing but the dependency of resistance on temperature or the effect of the temperature on the resistance of the different types of the materials. Okay, so as you know, in case of in the article of Ohm's law, derivation of Ohm's law on the basis of free electron theory, we have find out that the resistance of the metallic or conducting wires depends on temperature reciprocally. Reciprocally नहीं, आपका directly. As we increase the temperature, the resistance of the metallic or conducting wires increases. So effect of temperature on resistance of metallic or conducting wires. Okay, so according to free electron theory, R is nothing but becomes ml upon ne square a tau, implies that R is inversely proportional to the relaxation time, and relaxation time is nothing but the time between two successive collisions. That is, if we increase the temperature then tau will decreases. Okay, so decreases, so R will increase. Okay, तो जैसे हम किसी मेटलिक वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसका तो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि तेज़ी से कोलिजन्स होंगे तो डिक्रीज़ होगा, तो डिक्रीज़ होने से आप देखिए रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा. दैट मीन्स आपका जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की. ओके, बट प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हम ये कह सकते हैं, बट को किस पावर पर डिपेंड करता है ये हम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल डिफरेंट टाइप्स की डिपेंडेंसी टेम्परेचर के साथ शो करते हैं, बट कुछ मटेरियल्स आपके लीनियरली डिपेंडेंसी भी शो करते हैं. तो कुछ ऐसे मटेरियल्स के लिए ही हम यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो लीनियरली डिपेंडेंसी क्या करते हैं, शो करते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पर आप देखिए, तो सम materials, some metals, so linearly
dependency on temperature. Suppose R0 is the resistance at 0 degree C. RT is resistance at T degree C. Alpha is nothing but temperature coefficient. Then RT will be equals to R0 1 plus alpha T. Remember this formula. Okay, you can derive also this formula as you derived the formulas for the linear expansion, areal expansion or volume expansion in class of suppose 9th classes thermal expansions. Okay, अल्फा बीटा एंड गामा. ओके, वहाँ पर आपने अल्फा बीटा गामा को डिफाइन किया होगा थर्मल एक्सपेंशंस में. तो सिमिलरली यहाँ पर भी आप उसी एक्सपेंशन की डेफिनेशन से इसे डिफाइन कर सकते हैं. तो मैं उस डिटेल में ना जाने के बजाय मैं सीधा डायरेक्ट आपको एक रिजल्ट दिया है जिसे हम न्यूमेरिकली यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकली. न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना. अब इसके बाद हम जो बात करेंगे वो थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए. तो यदि हम मेटल्स की बात करें और मेटल्स के लिए इसे ड्रॉ किया जाए तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी और यहाँ पर मैंने R लिया. क्लियर है ना. तो जब हम इसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे आप चाहे तो ये ले लीजिए या इसकी जगह आप रेसिस्टिविटी ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा. एक ओवरऑल मटेरियल के लिए कंडीशन हो जाएगी. अदरवाइज़ आप उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज भी कर सकते हैं. तो इन केस ऑफ मेटल्स एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर द रेसिस्टेंस और रेसिस्टिव विल बी इंक्रीज. एज यू डिक्रीज द टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी विल बी डिक्रीज्ड. तो इफ़ वी टेक इट इन डिग्री C then this graph will becomes like this. Okay, that means at 0 degree C temperature the resistivity of the metals will not be 0. Okay, and but in case of semiconductors, एक another material की हम बात करेंगे which is very very interesting materials, superconductors. In case of superconductors, if we decrease the temperature T and take here in Kelvin, if we decrease the temperature then the resistivity of the superconductors decreases and at a particular point temperature its sudden fall and becomes 0, and this temperature is known as critical temperature. In this side is normal substance and in this side it's a superconductor. Below this temperature this substance will be a superconductor and in this side will be a normal substance. Okay, which may be metal and other materials. Okay, तो सुपर कंडक्टर से एक ऐसी
एक ऐसे मटेरियल्स है जो इनका टेम्परेचर आप जैसे डिक्रीज़ करते जाते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद इनकी रेसिस्टिविटी जस्ट फॉल कर जाती है और ज़ीरो हो जाती है। दैट मीन्स रेसिस्टिविटी ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि उनकी जो कंडक्टिविटी है वो आपकी गोज़ कर जाएगी अप टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स यदि आप उसमें एक बार चार्ज का फ्लो करा देते हैं तो लाइफ टाइम तक उसमें आपका चार्ज का फ्लो बना रहेगा विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। आपको किसी एक्सटर्नल सोर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है। और इस पर अभी वर्क चल रहा है लगातार। ऐसा नहीं है कि सब्सटेंसेस आपको नहीं मिले हैं, बट सब्सटेंसेस मिल रही है। ये आपका मरकरी के लिए ड्रॉ करा गया है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो सब्सटेंसेज आपको सुपर कंडक्टिंग स्टेट में मिल रहे हैं तो जिन टेम्परेचर्स पर मिल रहे हैं वो टेम्परेचर काफ़ी लो है, जिन्हें डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो आपका जो ये कह सकते हैं जो खर्च होता है वो बहुत लार्ज अमाउंट है इन कंपैरिजन ऑफ द एनर्जी लॉस। तो इससे जितने कि आप एनर्जी को सेव करेंगे उससे ज़्यादा का खर्च आपको टेम्परेचर को मेंटेन करने में आ जाएगा। इसलिए अभी तक इस चीज़ को डेली लाइफ में यूज़ नहीं किया गया है। लगातार रिसर्च चल रही है कि जिससे कि आपका जो सुपर कंडक्टर्स है उन्हें ऐसे टेम्परेचर्स पर भी प्राप्त कर लिया जाए जो टेम्परेचर डेली लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो आई थिंक दिस टॉपिक आल्सो क्लियर्ड। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक की जो बातें थी तो ये आपका रेसिस्टर से जुड़ी हुई जितनी बातें थी हमने आपको कराई। अब इसके बाद थोड़ा सा जो टॉपिक आपका डिस्कशन होने वाला है वो डिस्कशन आपका थोड़ा सा जो सर्किट्स में आप बैटरी कनेक्ट करते हैं तो उसमें आपका चार्ज फ्लो होता है। तो चार्ज फ्लो होने पर क्या होता है कि आपकी बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ता है, कुछ एनर्जी लॉस होती है। वो एनर्जी लॉस किसकी फॉर्म में होता है? सपोज़ कर लीजिए आपके पास एक बल्ब है, बल्ब में एनर्जी लॉस किसकी फॉर्म में होगा? आपका थर्मल एनर्जी यानी कि हीट की फॉर्म में होगा। तो हीट कितनी प्रोड्यूस हुई उसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। और हर एक इलेक्ट्रिक सर्किट की अपनी एक पावर होती है कि वो कितनी एनर्जी यूज़ करके कितनी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। तो उसकी एक अपनी इफिशियंसी होती है, पावर होती है। तो पावर को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।